Good evening, friends. We'll begin with our series where we are completing the polity PDF given by the Ghatna Chakra, which is important for a lot of competitive exams. So let's begin. So we'll start with the Union Council of Ministers. So what is the structure of Union Council of Ministers? It comprises of the Prime Minister, then Deputy Minister, Cabinet Minister, Minister of State, Minister of State Independent in charge. And again, the other is Union Council of Ministers. Okay, who is appointing them? They are appointed by the President. And who heads them? It is the President, the Prime Minister. The structure is not more than 15% of the strength of the Lok Sabha. And it was through an amendment brought in 2002 that this was made possible. That what they aid and advise the President, and they have a collective responsibility to Lok Sabha. Number of ministries at the center till August 1947, 82 ministries थी पहले, 18 ministries थी till 15 August 1947, and now they are 52. And the number might have increased. I have not updated with the current data. So then some of the important facts. The one who administers oath of the Prime Minister and other ministers is the President. He is the one who administers the oath. The one who presides over the meeting of the Union Cabinet, it is the Prime Minister. He presides over the meeting of the Union Cabinet. Then a minister can remain a minister without becoming a member of parliament for the period of 6 months. The word cabinet was used in the constitution in article 352 clause 3. Now we'll see some of the important articles related to the council of ministers. So article 74 क्या बोलता है कि to aid and advise the president, a council of ministers with prime minister as its heads. Then 74 to same article का second clause बोलता है says advice tendered by the ministers to the president shall not be inquired by any court. Okay, तो ये separation of power ensure किया जा रहा है एक तरीके से. फिर आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. Okay, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, सो दैट ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स. देन आर्टिकल 75(1) ए में एक चेंज लाया गया था कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% द टोटल मेंबर्स इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और यही दिल्ली के केस में है 10%. दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 10% से कम होने चाहिए COM अलॉन्ग विद द CM. Then article 75(2) the minister shall hold office during the pleasure of the president. Article 75(3) the council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Article 75(4) the president shall administer the oath to the ministers. Article 78 duties of the prime minister as respects the furnishing of information to the president. I think it should be clear. ये इम्पॉर्टेंट यही है कि पूछता है कि COM मैंशनड है तो कहाँ मैंशनड है, PM मैंशनड है तो कहाँ मैंशनड है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किस आर्टिकल में की गई है. ओके, ओथ एंड ऑल सब ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन किसको? प्रेसिडेंट को. कैबिनेट लेवल काउंसिल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड कैबिनेट. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द just a second guys. All executive actions of the government of India are considered to be done in the name of the president. The chairman of the CSIR, prime minister. Ex officio chairman of the civil services board is the cabinet secretary. ये काफ़ी बार पूछा गया कि ex officio chairman कौन होता है civil services board का, तो he is the cabinet secretary. Now the other important fact, the council of minister is collectively responsible to the Lok Sabha and not to the parliament. ये ध्यान रखिएगा. There shall be a minimum number of member of the Lok Sabha to move a no confidence motion against the council of ministers. The first law minister of independent India, Dr. B.R. Ambedkar. The first finance minister of independent India, R.K. Shanmugam Chetty. Then no confidence motion can be introduced only in Lok Sabha. An official document related to India is white paper. Article 75(1)(a) was added to the Indian Constitution by 91st Constitutional Amendment Act 2003
3 इसी में बात कही है कि 50% COM का स्ट्रेंथ होना चाहिए, कम मैक्सिमम शुड बी 15%. Then the president was made obliged to follow the advice of the cabinet by 42nd Constitutional Amendment Act. Then the president was given the power to send the advice of the cabinet once for reconsideration by 44th Constitutional Amendment Act 1978. Okay. Advice जो है मतलब the president was given the power to send the advice of the cabinet once for reconsideration. कंपल्सरी मतलब कि अगर रिकन्सिडरेशन के बाद भी वही उन्होंने भेजा कि रिकन्सिडर करें, लेकिन वही चीज़ आ रही है तो वापस से उनको साइन करना ही पड़ेगा उस पर. नाउ सी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स. इसमें देखिए आप ऊपर से एक बात देख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या है, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट आएंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर्स ऑफ स्टेट, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, देन कम्स आवर चीफ जस्टिस, स्पीकर, देन कैबिनेट मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डिप्यूटी चेयरमैन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न, then ambassadors, governors of state, chief ministers of state, judges of Supreme Court, chairperson UPSC, CAG, chief election commissioner, then on 10 deputy chairman, deputy speaker, member of Niti Aayog and all, then 11, 12, and I would be curious to know where the common man lies in this precedence. I think that would be at the last. The order of precedence is related to the rank order of various office bearers. तो office bearers की rank order निकाली जाती है, and it is used on the occasion of political function. The notification regarding order of precedence was issued on 26 July 1979. The cabinet secretary is the highest government official of the government of India. कमेंट में लिख के बताइए अभी हमारे प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम. अब आते हैं हम नेक्स्ट द पार्लियामेंट पे. तो हम पार्लियामेंट पे पढ़ते हैं. एंड आप समझिए कि बस आप पार्लियामेंट करना है, आपको जुडिशरी करना है, स्टेट करना है, फिर आपको कुछ बस मिसलेनियस जो प्रोविजंस है हमारे में, जैसे पंचायत हो गया, वेरियस ट्रिब्यूनल्स, फाइनेंस, स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस, तो उन सब पे हम फिर डिस्कस करेंगे. तो पार्लियामेंट में देखा जाए तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 79 से लेके 122 तक पार्लियामेंट की बात कही गई है. और 122 के बाद क्या आता है, जुडिशरी आता है. वेरी गुड. फिर ऑर्गन्स क्या है पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट इज एन पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इनके असेंट के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता. देन पार्लियामेंट के ऑर्गन्स में राज्यसभा, लोकसभा भी आएगा. राज्यसभा अपर हाउस है, आर्टिकल 80. लोकसभा लोअर हाउस है, आर्टिकल 81. और फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग. अब लोकसभा की बात करें तो फर्स्ट सेशन लोकसभा का हुआ था 1952 में, एंड द फर्स्ट स्पीकर वॉज गणेश वासुदेव GV मावलांकर थे. एंड लोकसभा समन्स प्रोरोग डिसॉल्व कौन कर सकता है, ये प्रेसिडेंट समन करेंगे, प्रोरोग करेंगे या फिर डिसॉल्व करेंगे. देन कम्स द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर. इन केस ऑफ लोकसभा that is 25 years. The first woman speaker was Meera Kumar, and the adjourner is the Lok Sabha speaker. Okay, now comes Lok Sabha seats. देखिए मैक्सिमम प्रोविजन है 550 का, लेकिन अभी प्रेजेंटली 543 हैं. एंड पहले 545 थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस के लिए था, तो वो हमारी पिछली लोकसभा में एक्ट के थ्रू उनका हटा दिया गया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया उन 2 सीट्स को. तो 543 हमारे प्रेजेंट, और उनमें से 525 to 4 स्टेट से आते हैं और 19 यूटीज से आता है. प्रोविजन क्या है कि 550 होने चाहिए, 530 स्टेट से आने चाहिए और 20 यूटीज से आने चाहिए. The 104th Constitutional Amendment Act sees the reservation of seats for Anglo-Indians in the Lok Sabha and state legislative assemblies. It came into force on 25th January 2020. At present, 2 Anglo-Indian members have been nominated in the 17th Lok Sabha, whose term will be till 2024. अब देखिए इसमें मैप के ज़रिए दिखाया है कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं. तो देखिए आप सबसे ज़्यादा 80 सॉरी तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दिख रही है 80 सीटें, और कहाँ सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है, देखिए महाराष्ट्र में 48 है. फिर उसके बाद इधर 42 इन वेस्ट बंगाल, इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग. 42 इन वेस्ट बंगाल. देन तमिलनाडु 39, देन 40 बिहार. सो राजस्थान 25, 29, here also 25, 28,
कर्नाटका। तो आप ये देख लीजिए। देन लोकसभा स्पीकर्स जीवी मावलंकर पहले थे और अभी हमारे ओम बिरला जी हैं। और ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको भी, कि द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट होती है। स्टेट वाइड एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन, अभी किसके बेसिस पे, 1971 सेंसस के बेसिस पे। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट सेशन। द टर्म ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी, कितना से, अप टू 1 year एट अ टाइम, एंड एट 3 years for 3 years एट मैक्स। देयर शैल बी नॉट बी अ गैप बिटवीन लास्ट सिटिंग, मतलब 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 months, मतलब 6 months से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गैप। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 सिटिंग्स या फिर 2 सेशंस के बारे में कहता है। Then the Lok Sabha and Rajya Sabha has a quorum of 1/10 of the total members. The Speaker of Lok Sabha uses his casting vote only in case of tie. जब टाई होगा तभी लोकसभा स्पीकर का जो वोट है वो काउंट होगा। आफ्टर जनरल इलेक्शन द वन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड मेंबर, उनको प्रोटेम स्पीकर बोलेंगे। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ लोकसभा एंड द गवर्नर इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। The Speaker of the Lok Sabha submits his resignation to Deputy Speaker of Lok Sabha. Okay, that should be clear enough. The Speaker of the Lok Sabha submits the resignation to Deputy Speaker of Lok Sabha. The Speaker of the Lok Sabha can be removed by resolution passed by the majority of all the members of the Lok Sabha. Okay, ये काफ़ी clear अभी समझ में आ रहा होगा आपको। At present, Speaker of the Lok Sabha is Om Birla ji. Lok Sabha can be dissolved before the completion of its term by President on the advice of Council of Ministers. At present, maximum limit of election expenditure for Lok Sabha constituency is fixed 95 lakh for bigger state, 70 for smaller state. लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये सिर्फ कैंडिडेट के लिए है, नॉट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। सो टेक्निकली देखा जाए तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर इज अ जोक। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोक सभा against whom a no confidence motion was brought in the Lok Sabha is G.V. Mavalankar. Lok Sabha secretariat function directly under the Speaker of Lok Sabha. अब हम आ गए राज्यसभा पे। राज्यसभा का देखें तो इनके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो हैं वही पे वाइस प्रेसिडेंट है। मिनिमम एज 30 years। नेचर ये कैसा है, ये परमानेंट हाउस है। टोटल सीट्स 250 हैं, जिनमें से 238 स्टेट और यूटी से आएंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे इन फील्ड से। डिस्टिंक्शन होना चाहिए उनका लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या सोशल सर्विस में। इनका मेंबर का टेन्योर 6 years है और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन मेथड और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है यूज़। नाउ कमिंग टू द कितनी सीटें राज्यसभा की मिली है किसी से स्टेट को, तो देखा जाए तो मैक्सिमम हम देखेंगे कि 1 और 2, मतलब कम ही दिख रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी जो बिगर स्टेट्स हैं उनकी ज़्यादा ही हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी राज्यसभा सीट है। अब हम आते हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड बिल्स। अब कितने तरीके के बिल्स होते हैं देखिए। ऑर्डिनरी बिल, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो इन तीनों में से नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल, इसके प्रोविजंस दिए हैं आर्टिकल 110 से लेके आर्टिकल 116 तक या 118 तक है। फिर उसके बाद है स्पेशल बिल्स कुछ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जैसे हुआ। देन फाइनेंशियल बिल में 2 प्रकार हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। एक बिल जो है वो मनी बिल की जैसे होगा और एक बिल जो है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह आप कह सकते हैं। देन लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं यूनियन में। तो इसमें हम देखें तो आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 लोकसभा चूज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मेंबर के बीच से चुने जाते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा टेक ओथ एज द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड नॉट एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है। द स्पीकर कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर टू द स्पीकर। ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर क्या बार बार मैं पढ़ रही हूँ, तो इसको ध्यान दीजिए अब एक बार। तो आर्टिकल 93 लोकसभा ही चूज़ करेगा अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर। फिर इसके बाद इनको ओथ कौन दिलाएगा, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, नॉट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मतलब ये
पहले एमपी होंगे, फिर उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर होंगे। तो ओथ इन्होंने ले रखी है किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ द लोकसभा अगर हैं, जैसे हम अगर लोक स्पीकर की बात कर रहे हैं तो। और ये सबमिट करेंगे किसको रेजिग्नेशन, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी रिस्पेक्टिव डिप्टी चेयरमैन को। Then they can be removed from office by the resolution passed by majority of all then members of the Lok Sabha, मतलब president voting से हो सकता है simple, although it is necessary to give 14 days in advance. फिर some of the important provisions have been given here which is repetitive, so let's move on. The next is parliamentary committees. So in the up to this lecture we will complete till before judiciary, we'll end this. So now coming to the committees, if I'm not wrong, yes, parliamentary committees. So parliamentary committees तीन तरह की हैं, constituent, nominator, report recipient, speaker chairman. ओके, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है हम देख सकते हैं कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ टर्म है, और इसके टाइप्स अगर देखें तो परमानेंट भी होंगी, एडहॉक भी कमिटीज़ होंगी। तो अगर हम परमानेंट कमिटीज़ को देखें तो वो परमानेंट होंगी, हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, ओके। और एडहॉक कमिटीज़ जब ज़रूरत पड़ेगी तब, और नाम से लग रहा है ये पर्पज़ स्पेसिफिक है, टेम्पोररी है। अब हम देखें तो राइट आरटीआई एक्ट 2005, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आरटीआई एक्ट, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स इस में कहाँ से इंक्लूड कर दिया, फिर भी एक बार देखते हैं। आरटीआई एक्ट, जैसे ये एक्ट है, ठीक है, तो एक्ट है तो ये क्या लीगल राइट है। इसको पास किया था पार्लियामेंट ने 2005 में, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, और ये इफेक्ट में आया 2005 में। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में ये भी आ गया यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कुछ फाइनेंशियल कमिटीज़ जो है हमारी, और ये फाइनेंशियल कमिटीज़ ही काफ़ी एग्जाम में पूछता है और आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए, सिंगल कमिटी मतलब इसमें जो मेंबर्स हैं सिर्फ एक हाउस के हैं। तो एस्टिमेट्स कमिटी है, उसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सारे लोकसभा से होते हैं। और जॉइंट कमिटी मतलब मेंबर्स दोनों हाउसेस से हैं। तो पीएसी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, ये दोनों आती हैं। और ये समझिए ये लार्जेस्ट कमिटी भी है, एस्टिमेट कमिटी, क्योंकि इसके मेंबर्स 30 हैं। और पीएसी में वहीं 22 मेंबर होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। और वहीं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं, ठीक है, याद रखे रहिएगा। ये पीएससी सबसे ओल्डेस्ट है, 1921 में बनी थी ये कमेटी। और इसका भी हमने पढ़ा भी था कि उसका ये कैग की जो रिपोर्ट होती है वो उसको देखती है, स्क्रूटनाइज करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं। तो फाइनेंशियल कमिटीज़ वो तीनों जो थी हमने अभी पढ़ा ऊपर, ये स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, ओके। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, इंक्वायरी कमिटीज़, कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटीज़, कमिटीज़ रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। अब आते हैं जॉइंट सिटिंग पे। जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, अब देखिए, कोई बिल जो है दोनों में बात नहीं बनी, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए किया जाता है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल बिल के जो दूसरा टाइप है उसके लिए किया जाता है, फाइनेंशियल बिल 2 के लिए भी और ऑर्डिनरी बिल के लिए। तो अगर किसी बिल पे मान लीजिए दोनों हाउसेस में कुछ प्रोविजंस पे डिसएग्रीमेंट है, ये है, तो जो प्रेसिडेंट है वो कॉल कर सकता है कि एक जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए। ये प्रोविजन आपने आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। और जब जॉइंट सिटिंग होती है कौन हेड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा हेड करेगा। और अब तक 3 बार बुलाई जा चुकी है जॉइंट सिटिंग। पहला 1961 के डाउरी एक्ट के लिए, डाउरी प्रोहिबिशन बिल जो लाया गया था। फिर 1978 में बैंक सर्विस कमीशन के लिए, एंड इन 2002 रिलेटेड टू द पोटा एक्ट। देन कम्स द मनी बिल। मनी बिल को देखा जाए तो मनी बिल एक आर्टिकल 109 एंड 110 में इसका मेंशन है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकती है, और अब बस 14 डेज़ के अंदर अंदर इनको रिटर्न करना पड़ता है, और सर्टिफाइड बाय द स्पीकर। स्पीकर बताएंगे कि कोई बिल जो है उसको मनी बिल का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ओके। And then I think this all we have almost taken. First actress to be nominated Nargis Dutt. 1/3 retire every 2 year. 12% nominated. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 में पास हुआ था, बाकी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक काइंड ऑफ समराइज किया गया है इस पेज में जो अब तक के हमने देखा था, सो नो नीड टू रिपीट इट अगेन।
अब हम आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे जुडिशरी, विच विल बिगिन विद द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.